ویلکم ہے خبروں کی تفصیلات میں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کی تھرڈ پارٹی جائزہ لینے کی پالیسی مرتب کر لی۔ منصوبوں میں کرپشن اور فنڈز کی غیر ضروری استعمال کو روکنے کے لیے ایسا فیصلہ کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عاجز جمالی کی اس رپورٹ میں۔ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا امکان، غیر معیاری کام، فنڈز کم لگائے اور بل زیادہ بنانے کی شکایات سامنے آنے لگی۔ وفاقی حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے نئی پالیسی جاری کر دی۔ نئی پالیسی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس کے بعد جاری کی گئی۔ چاروں صوبائی حکومتوں کو نئی پالیسی سے آگاہ کر دیا گیا۔ منصوبوں کے فنڈز تھرڈ پارٹی کے مطمئن کردہ رپورٹ سے مشروط کر دیے گئے۔ 7 کروڑ روپے سے زائد کے منصوبوں کی تھرڈ پارٹی جائزہ لیا جائے گا۔ خط کے مطابق تھرڈ پارٹی نے اطمینان بخش رپورٹ نہ دی تو مزید فنڈ جاری نہیں ہوں گے۔ تمام صوبائی محکمے ترقیاتی منصوبوں پر جاری کام کو معیاری بنانے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی لاپرواہی اور غفلت کھل کر سامنے آ گئی۔ سرکاری اسکولوں میں 13 لاکھ کتابوں کے سیٹ کم بھیجنے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق کراچی کے طلباء کو 1 لاکھ کتابیں کم ملیں گی۔ بورڈ انتظامیہ نے 47 لاکھ کے بجائے 34 لاکھ طلباء کو کتابیں دینے کا منصوبہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے مطلوبہ کتابیں بھجوانے کی ہدایت کی تھی۔ اس حوالے سے تفصیلات آئمہ خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی نااہلی، سرکاری اسکولوں میں 13 لاکھ کتابوں کے سیٹ کم بھیجنے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق بورڈ انتظامیہ نے 5.5 ارب کے بجٹ سے 47 لاکھ طلباء کے بجائے صرف 34 سے 36 ہزار طلباء کے لیے کتب کے سیٹ فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ بورڈ کی جانب سے تاحال مارکیٹ میں کتابیں بھی فراہم نہیں کی گئیں۔ والدین اور طلباء کو پریشانی کا سامنا ہے۔ والدین اور طلباء کا کہنا ہے کہ کئی دن سے بازار کے چکر لگا رہے ہیں لیکن کتابیں نہیں مل رہی۔ چیئرمین اردو بازار ٹریڈ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ہر سال سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے کتابیں نہیں مل پاتی۔ رواں سال بورڈ کی جانب سے 13 لاکھ کم سیٹ تیار کیے گئے ہیں۔ ریفارم سپورٹ یونٹ نے گزشتہ برس 2022-23 کی انرولمنٹ اعداد و شمار بورڈ انتظامیہ کو دیے تھے۔ رواں سال میں نئے داخلے اور پرائیویٹ اسکولوں سے سرکاری اسکولوں کا رخ کرنے والے طلباء کی تعداد میں فرق ہے۔ سندھ کے 6 ڈویژن کے اسکولوں کو کتابوں کے مجموعی طور پر 34 سے 36 ہزار سیٹ بھیجے جائیں گے۔ پچھلے انرولمنٹ کے مقابلے میں تقریباً 13 لاکھ کم کتابیں بھیجی جائیں گی، جبکہ کراچی ڈویژن میں 4 لاکھ کے بجائے 3 لاکھ سیٹ دیے جائیں گے۔ آئمہ خان سٹی 21۔ سندھ سرکار کا بڑا اقدام، محکمہ اسکول تعلیم میں ضلع تعلیمی افسر سے اختیارات واپس لے لیے گئے۔ اختیارات ڈویژنل ڈائریکٹرز کو سونپ دیے گئے۔ کون کون سے اختیارات منتقل کیے گئے ہیں، تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ سندھ سرکار نے محکمہ اسکول تعلیم میں ضلع تعلیمی افسر سے اختیارات واپس لے لیے۔ ضلع تعلیمی افسر کے اختیارات ڈویژنل ڈائریکٹر کو سونپ دیے گئے۔ سندھ کے 30 اضلاع کے ڈی ای اوز کے اختیارات 6 ڈویژن کے ڈائریکٹر کو دیے گئے۔ اختیارات پرائمری اسکول ٹیچرز کو 9 سے 14 گریڈ میں ترقیاں دینے کے بعد منتقل کیے گئے۔ اختیارات میں اساتذہ کی جی پی فنڈز، ریٹائرمنٹ اور زچگی کی چھٹیاں شامل ہیں۔ ضروری کام، عدت کی چھٹیاں اور ایل پی آر سمیت دیگر کے اختیارات بھی ڈائریکٹر کو منتقل کر دیے گئے۔ محکمہ اسکول نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ پرائمری اسکول ٹیچرز کے تمام معاملات ڈی ای اوز ڈائریکٹر کو ارسال کریں گے۔ ڈائریکٹر کی منظوری کے بعد فیصلے ہوں گے۔ تمام تر اختیارات اس سے قبل ڈی ای اوز اسکول تعلیم کے پاس تھے۔ ڈی ای اوز اسکول تعلیم اب صرف ڈائریکٹر کو سفارش کا حق رکھیں گے۔ سندھ حکومت سندھ تعلیم کو بہتر کرنے کی راہ پر گامزن۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کا اسکولز آنرشپ کے حوالے سے اسمبلی ممبران کو دعوت دے دی۔ اسمبلی ممبران کے نام خط بھی لکھ دیا۔ اسمبلی ممبران اپنے حلقے کے 3 اسکول کی ذمہ داری لے کر تمام انتظامات کی نگرانی کریں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سندھ میں تعلیم کی ترقی کے سلسلے میں اہم پیش رفت، سرکاری اسکول کی حالت زار بہتر کرنے کا پلان۔ صوبائی وزیر تعلیم نے ممبران اسمبلی کو آن بورڈ لے لیا۔ وزیر تعلیم و ترقی معدنیات سندھ سید سردار علی شاہ نے اسکولز آنرشپ کے حوالے سے اسمبلی ممبران کو دعوت دے دی۔ صوبائی وزیر سید سردار علی شاہ نے اسمبلی ممبران کو اسکولز کی ذمہ داری لینے کے لیے خط لکھ دیا۔ خط سے قبل 12 جون کو وزیر تعلیم سندھ نے سندھ اسمبلی میں تقریر کے دوران ممبران سے کہا تھا کہ وہ اپنے حلقے کے 3 اسکولوں کی ذمہ داری لے کر تمام انتظامات کی نگرانی کریں۔ اس سے سماج میں ذمہ داری کے احساس کو فروغ ملے گا۔ پولیٹیکل ہو کے ہم ایجوکیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ عادل بھائی کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جس نے یہاں پہ یہ دیا تھا کہ جتنے ممبران 168 بیٹھے ہوئے ہیں 6 اسکول اٹھائیں، ایڈاپٹ کریں۔ آئی اپریشیٹ، آئی ویلکم۔ ہمارے پاس ایڈاپٹر اسکول پالیسی ہے۔ یو کم فارورڈ، آپ جائیں، نگرانی کریں، وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ بچے اسکول میں آ رہے نہیں آ رہے، ٹیچرز آ رہے نہیں آ رہے، آپ مانیٹرنگ کے آپ نظام کو ہاتھ میں پکڑیں، ورنہ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم یہاں پہ بیٹھ کے رونا روتے ہیں کہ صحیح
हमारे यहाँ कराची में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकूं। फारूक भाई ने शायद कहा था। सैयद सरदार अली शाह का कहना था, सूबाई असम्बली मेंबरान को दावत देता हूँ कि वो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपना हिस्सा डालें। स्कूल्स की ऑनरशिप से तालीमी मयार को बेहतर करने और मिसाली बनाने में मदद मिलेगी। MPs अपने हल्के में असातिज़ा और वालिदैन के साथ राब्ता में रहकर इस्लाहात और मुतारिफ करवा सकते हैं। वज़ीर तालीम ने वाज़ेह किया कि स्कूल्स के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक जिम्मेदारी का एहसास पैदा होने से हम मिलकर तालीम और तरक्की मुमकिन बना सकते हैं। हुकूमती गफलत का पोल खुल गया। जिना अस्पताल स्टाफ की किल्लत का शिकार, जबकि 1000 से ज़ायद पोस्टें खाली पड़ी हैं। असामियाँ भरने की बजाय इंतज़ामिया ने OPD करने वाले मुतादिद डॉक्टरों को ही इंतज़ामी अहदों पर भी फाइज कर दिया, जिसकी वजह से मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। तफसीलात इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। गफलत और इंतजामिया की लापरवाही, जिना अस्पताल को अमले की किल्लत का सामना। 1000 से जायद खाली उसामिया उम्मीदवारों की मुंतजर। 18वीं तरमीम के बाद वफाक से सूबे को मुंतकिल होने वाले जिना अस्पताल में गुज़श्ता कई बरस से 1000 से जायद पोस्टें खाली पड़ी हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर स्टाफ भी शामिल है। पोस्टें खाली होने के बावजूद अस्पताल की इंतजामिया ने मुतअद्दिद OPD करने वाले डॉक्टरों को असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और दीगर जिम्मेदारियां दे दी हैं। डॉक्टरों की तो मौजें हो गईं, लेकिन मरीज रुल गए। कहते हैं कभी दाखिला नहीं मिलता तो कभी तारीख पर तारीख दी जाती है। हर बार तारीख दे देते हैं। 1.5 साल हो रहा मैं इधर घूम रहा हूँ, 1.5 साल से इधर ही हूँ। तारीख दे देते हैं, बोला हफ्ते को, 10 दिन को, 15 दिन को। मैं सिंध से आता हूँ, मेरे 10,000 रुपये आने जाने का किराया लगता है हमारा। नहीं दाखिल करें, वो बोलता है रिपोर्टें कराओ, टेस्टें वेस्टें कराओ, बाद में दाखिल करके। अब मरीज बहुत सीरियस है, बहुत परेशान है। कल हम आए हैं शाम को 5 बजे, अभी ऐसी हालत में इसको यहाँ खड़ा है। 20 ग्रेड के 3 प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, 2 गैनी की प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन की 4 पोस्टें खाली हैं। नर्सिंग इंस्ट्रक्टर की 9, 22 रजिस्ट्रार, 92 मेडिकल ऑफिसर की उसामियां खाली हैं। 18 हेड नर्स की पोस्टें, 12 मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्टें, इंचार्ज नर्स की 195 पोस्टें खाली हैं। 29 जूनियर टेक्नीशियन डिस्पेंसर में से 21 खाली हैं, जिसके अलावा दीगर पोस्टें भी खाली हैं, जिसकी वजह से मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। इब्राहिम रिंद, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की लियारी किकरी ग्राउंड आमद। वज़ीर आला सिंध के हमरा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद भी मौजूद थे। मेयर कराची ने वज़ीर आला सिंध को लियारी किकरी ग्राउंड के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करवाया। वज़ीर आला सिंध ने लियारी किकरी ग्राउंड में फुटबॉल भी खेली। तफसीलात जान लेते हैं शोएब मुख्तार से। शोएब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अब से कुछ देर कबल जो है लियारी ककड़ी ग्राउंड पहुंचे थे। वज़ीर आला सिंध के हमरा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और टाउन चेयरमैन अरकान कौमी व सूबाई असम्बली भी मौजूद थे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को लियारी ककड़ी ग्राउंड के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करवाया है। मेयर कराची ने वज़ीर आला सिंध को लियारी ककड़ी ग्राउंड में जारी खेलों की सरगर्मियों से मुतालिक भी जो है तफसीली ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला सिंध ने लियारी ककड़ी ग्राउंड में मौजूद फुटबॉलर से भी मुलाकात की है और ककड़ी ग्राउंड में उनकी जानिब से फुटबॉल भी खेली गई है और काफ़ी खुशी का इजहार किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने लियारी ककड़ी ग्राउंड में मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की है। अब से कुछ देर कबल जो है उनकी जानिब से लियारी ककड़ी ग्राउंड का दौरा किया गया है। इस अहम तरीन दौरे में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद भी जो है उनके हमरा मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। बल्दिया उज़्मा कराची के हर्स और दुकानों को किराया न देने वाले निशाने पर आ गए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने हॉक्स वे पर मौजूद हर्स का किराया न देने वालों की तफसीलात तलब की है। महकमा स्टेट की जानिब से मुख्तलिफ मार्केटों का किराया न देने वालों से कब्जे वागुजार कराए जाएंगे। बल्दिया उज़्मा कराची के हॉक्स वे साहिल पर 267 हर्ट्स मौजूद हैं। 72 हर्ट्स के अलॉटेज ने किराए में इजाफे के खिलाफ अदालत से रजू कर रखा है। KMC की 57 मार्केटों में 7,500 से ज़ायद दुकानें मौजूद हैं। सिटी काउंसिल के इजलास में हट्स और दुकानों के किराए में इजाफे की मंजूरी ली गई थी। आइंदा चंद रोज में बल्दिया उस्मा कराची के अराज़ी पर काबिज अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सिंध हुकूमत ने बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि मुसाफिरों के लिए बस अड्डों से मुफ्त शटल सर्विस चलाई जाएगी। कराची बस टर्मिनल पर पुलिस चेक पोस्ट बनाने का भी ऐलान कर दिया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट।
कराची वालों के लिए एक और खुशखबरी। सिंध हुकूमत का बेहतरीन सफरी सहूलियात की फरहमी के लिए बड़ा इकदाम। बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। शर्जिल मेमन की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना था मुसाफिरों को टर्मिनल तक पहुँचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू कर रहे हैं। शटल सर्विस कैंट स्टेशन, सगीर रोड शहीद, इमेजिना रोड और अलकरम स्क्वायर से शुरू की जाएगी। शटल सर्विस शुरू होने की खबरों पर शहरी भी मुतमईन दिखाई दिए। कहते हैं नई सर्विस बसों में धक्के खाने वालों के लिए नेमत है। ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे तो जो है ना, अल्लाह करे इस तरह ही अच्छे फैसले और भी करते रहें। शटल सर्विस जो हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, इसके लिए सबको फायदा। शर्जिल इनाम मेमन ने तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात का ख्याल रखते हुए इकदाम उठाने की हिदायत कर दी। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कराची बस टर्मिनल पर पुलिस चेक पोस्ट बनाने का भी ऐलान किया। अक्सर शाहिद T21। कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें बारिश के बाइस ताख़ीर का शिकार। कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का रश लग गया। ट्रेन के मुंतज़िर शहरियों का बरवक्त इत्तला ना मिलने का शिकवा। कहते हैं माज़ूर अफराद के लिए घंटों इंतज़ार करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। शहर में बारिश के बाद ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। सहूलियात के फुकदान पर मुसाफिरों की रेलवे इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। बारिशों से रेल का शेड्यूल मुतासिर। ट्रेनों की रवानगी में ताखिर से कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। मुसाफिर बरवक्त इत्तला ना मिलने पर रेलवे हुकाम से नाला। स्टेशन पर मुसाफिर कहीं लूडो खेल कर अपना वक्त गुजार रहे हैं तो वहीं माजूर अफराद मुश्किल में बैठे नजर आए। मैं नवाब शाह जा रहा हूँ। अलामा इकबाल का 3:30 बजे का टाइम था इधर से निकलने के, उधर 9 बजे तक पहुँच जाना था। अभी 1 बजे उधर पहुँचेगा। बहुत तकलीफ में हम कहाँ जाएं। अभी ट्रेनें बहुत लेट हैं, परेशानी हो रही है, आवाम परेशान है। कोई किस काम से जा रहा है, कोई मजदूर है, कोई किस हिसाब से, यानी कि बहुत परेशानी। लोगों को पानी की भी सहूलत नहीं है, यानी कि कोई सहूलत नहीं है यहाँ पर। कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस दोपहर 4 बजे के बजाय शाम 5:15 पर रवाना हुई, जबकि सखर एक्सप्रेस रात 11 बजे के बजाय 2 घंटे ताखिर के बाद रात 1 बजे रवाना होगी। कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 2 घंटे ताखिर से रवाना हुई। कैमरामैन शाहजेब के साथ अक्सर शाहिद T21। अब आपको बताएं, कमिश्नर कराची और मुर्गी फरोश आमने सामने आ गए। कमिश्नर कराची ने मुर्गी की कीमत में इजाफे का नोटिस ले लिया। जिंदा मुर्गी 400 रुपये में फरोख्त करने का पाबंद कर दिया। मुर्गी फरोशों का फैसला मानने से इनकार। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। नायब सदर FPCCI अब्दुल मेहमन खान कहते हैं कि तमाम जोन साइट के बोर्ड में हकीकी नुमाइंदगी नहीं है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों के सनतकार भी परेशान। FPCCI के नायब सदर अब्दुल मेहमन खान ने शिकवा किया कि तमाम जोन के साइट के बोर्ड में हकीकी नुमाइंदगी नहीं। सखर चैम्बर का सदर हूँ और सखर साइट मेंबर कौन है वहाँ के सनतकारों को ही नहीं पता। अब्दुल मेहमन खान ने कहा कि साइट बोर्ड में इंडस्ट्री जोन के शामिल होने तक मसाइल हल नहीं हो सकते। सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला आ रहा है कि जो साइट के बोर्ड की कॉम्पोजिशन है उसमें हकीकी नुमाइंदगी ही नहीं है। मिसाल तौर सखर साइट का मेंबर है, मैं वहाँ के चेंबर का भी प्रेसिडेंट हूँ, मुझे पता ही नहीं है। इस तरह जामशोर और नूरियाबाद का जो मेंबर है वो जामशोर वालों को नहीं पता, हैदराबाद वालों का कौन मेंबर है उनको नहीं पता। तो जब तक कि बोर्ड पे हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, हम इश्यूज़ कहाँ हाईलाइट करेंगे, किस तरह उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे बड़ा इशू तो यही है कि हमारी आवाज़ ही इस वक्त नहीं सुनी जा रही। कराची और सिंध के इंडस्ट्रियल जोन के मसाइल के सवाल पर कहा कि कराची और सिंध के इंडस्ट्रियल जोन के एक जैसे मसाइल हैं। हर इंडस्ट्री जोन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज सिस्टम और पानी समेत सड़क की मुरम्मत के मसाइल हैं। देखिए, मसले बुनियादी तौर पर कराची हो या सिंध का कोई दूसरा शहर हो एक ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, सूरज के इश्यूज़ हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स की ज़रूरत है, रोड्स की ज़रूरत है। तो मसाइल तो हमारे साझे ही हैं और उम्मीद करते हैं आज मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, कोई हम इसको हल की तरफ लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। नायब सदर FPCCI ने कहा कि इस वक्त पूरे मुल्क की इंडस्ट्री कैपेसिटी चार्जेस की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि कैपेसिटी चार्जेस खत्म किए जाएं और पावर प्लांट का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, सब पता चल जाएगा। कैमरामैन शाहजेब के हमरा अशरफ खान T21। स्टॉक मार्केट एक दिन की मंदी के बाद मुस्बत इख्तिताम हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान को ब्रेक लग गए। स्टॉक मार्केट 81,000 से जायद की सतह से 77,191 की सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में गुज़िश्ता रोज की मंदी के बाद सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी की गई, जिसके बायस मार्केट में उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया। साबिक डायरेक्टर स्टॉक मार्केट अमीन यूसुफ का कहना है, मार्केट तेजी से ऊपर जाती है तो करेक्शन की उम्मीद होती है। देखिए, एक तो हमारी मार्केट है सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है, जहाँ नेगेटिव सेंटिमेंट
डिसअपॉइंटमेंट होता है, लोग जो है ना रुक जाते हैं और बाइंग नहीं करते हैं। ओवरऑल ऑब्वियसली इंटरनेशनल जो क्राइसिस है जो हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट्स कल आपने देखा काफ़ी नीचे गई हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट था जो मार्केट ने कर लिया। और ओवरऑल देखिए मार्केट बहुत बढ़ चुकी थी, ऑब्वियसली इसमें करेक्शन ड्यू था। अब रिजल्ट सीजन है ना, वो ड्राइव करेगा। देखिए मॉनेटरी ईजनिंग भी हो रही है, अब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइन करेगी फर्दर कि और अगर कट होता है तो मार्केट उसमें उसका इम्पैक्ट लेगी और उस पर परफॉर्म करेगी। स्टॉक मार्केट माहिर शहरयार भट्ट का कहना है इस वक्त आलमी सूरत हाल के बायस मार्केट में सरमायाकार मोहताद हैं। यही वजह थी कल मार्केट में 1100 से ज़ायद पॉइंट की कमी देखने में आई। फिर हमारे लोकली भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, खासतौर पे इस्लामाबाद में धरने हो रहे हैं, एनर्जी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट जितना नीचे आना चाहिए था सरमायाकार समझते उतना नीचे नहीं आया। तो उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक मिला जुला रुझान उसके बाद से देखने में जा रहा है, अप डाउन का सिलसिला जारी है मार्केट में। कारोबार के दौरान 443 कंपनियों के 60 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 17 अरब रुपए से जायद की रही। शेयर्स की लेन देन के दौरान 206 कंपनियों की कीमतों में इजाफा और 176 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन जानजेब के साथ अयाज राना, कराची। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखिए। कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। शहर की मारूफ झंडा गली में खरीदारों का रश बढ़ गया। जश्न आज़ादी यूं तो मुल्क भर में मनाया जाता है, लेकिन 14 अगस्त को कराची की रौनक देखने से ताल्लुक रखती है। शहरी अपने घरों को सजाने के लिए दिल खोल कर खरीदारी करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी झंडा गली में अवाम का हुजूम उमट आया। शहरियों की बड़ी तादाद रंग बिरंगी झंडियों, कौमी परचम, मुख्तलिफ तरह के बैचेस और आराइशी सामान की खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। बच्चियों के नए फ्रॉक्स खरीदे हैं जिनमें झंडे हैं, एंड आई लव दैट। और हम बच्चों के नए छोटे छोटे बैंड्स भी खरीद रहे हैं। और मैं अपने घर को सजाता हूँ, झंडियाँ वंडियाँ लगाता हूँ 14 अगस्त में, और मेरी बर्थडे भी 14 अगस्त को ही आती है। ये पेपर मार्केट सदियों से चली आ रही है, और जब से पाकिस्तान बना है, जब से 14 अगस्त का काम हाई फाई था। कराची की अहम इमारतों को भी खूबसूरत अंदाज में सजाया जाता है और अवाम दिल खोल कर वतन से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। कैमरामैन हैदर अली के साथ अक्सर शेख, सिटी 21।